عمران خان کا جو خودکش سیاسی بیانیہ ہے اس کا بوجھ ان کی جماعت بھی نہیں اٹھا سکتی. جس رفتار سے اس غبارے میں ہوا بھری گئی تھی اسی رفتار سے اس میں سے ہوا نکل رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی ہوا کا رخ جو ہے وہ چینج کر لیا ہے. سنجرانی صاحب ہیں، ان کو کس نے منتخب کیا ہے؟ یہ فیض حمید کے لوگ ہیں. تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے. جو حال پی ٹی آئی کا ہونے جا رہا ہے آج مسلم لیگ کاف کا حال ہے، تقریباً وہی حال ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ. 9 مئی کے واقعے کے آفٹر شاکس جاری ہیں اور ان آفٹر شاکس کے نتیجے میں تحریک انصاف ریت کی دیوار کی مانند ریزہ ریزہ ہوتی جا رہی ہے. اور آج تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے بھی تحریک انصاف کو خیرباد کہہ دیا ہے اور کچھ دیر کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے. مگر آج ہمارے ساتھ مزمل سہروردی صاحب موجود نہیں ہیں. وہ اپنی کسی ذاتی مصروفیات سے چائنا میں موجود ہیں اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا. اس لیے آج ہم جو ہے وہ انالیسز لیں گے ہمارے بہت ہی تجربہ کار، تجزیہ کار اور سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مرتضیٰ سولنگی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہوں. چلے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، آپ ٹھیک ہے، پر ملک کے حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب، آج فواد چودھری صاحب نے بھی شری مزاری کے بعد جو ہے نا وہ آج پی ٹی آئی کو خیرباد کہہ دیا ہے. تو یہ کیا ایک کوئی نئی پارٹی بننے جا رہی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں فواد چودھری صاحب؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، فواد چودھری کچھ حالات میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے جب پروجیکٹ عمران زوروں پر تھا، تو اس وقت وہ شامل ہوئے تھے اور اس وقت بہت سارے لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں، تو فواد چودھری بھی شامل ہو گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے پہلے عمران خان کی وہ تمام خرابیاں جس کے بارے میں بہت سارے نقاد کہتے ہیں ان سے بڑھ کر انہوں نے ان کی خامیاں نکالی تھیں کہ بنی گالا میں کیا ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر فواد چودھری وہاں شامل ہوئے. لیکن پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے پہلے فواد چودھری، آپ کو یاد ہو کہ وہ مسلم لیگ کاف میں بھی تھے، وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی ہے، پرویز مشرف کے ترجمان بھی تھے، پھر پیپلز پارٹی کے اندر بھی شامل ہوئے، پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاون خصوصی بھی تھے، پھر وہ بلاول کے ترجمان بھی تھے. لیکن پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے عمران خان کے جو سیاسی مخالف ہیں ان کے خلاف بد زبانی کے عالمی ریکارڈ قائم کیے. بلکہ کوئی صحافی ان کے دور اقتدار میں ان کی زبان سے محفوظ نہیں تھا، اور 2 صحافی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں رہے، اگر آپ کو یاد ہو. ایک سمیع ابراہیم صاحب اور ایک مبشر لقمان. تھپڑ رسید کیے گئے تھے ان کو. تو یہ ان کے ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ نہیں تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ نعرے لگاتے تھے، جی تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی. اور اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے، اس کے بعد کس طرح سے وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے ٹی وی اسکرین پہ. اور جب ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت ملی اور ان کو لگا کہ دوبارہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو پھر جو انہوں نے بھاگنے کا جو عالمی ریکارڈ قائم کیا وہ بھی لوگوں نے دیکھا. تو ان کا جو کردار ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کتنے بہادر ہیں اور عمران خان کے ساتھ کس طرح سے وہ جڑے ہوئے تھے، وہ لوگوں نے اب دیکھ لیا ہے. لیکن اس کا جو حاصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو خودکش سیاسی بیانیہ ہے اس کا بوجھ ان کی جماعت بھی نہیں اٹھا سکتی، اور جو فواد چودھری ٹائپ جو لیڈرز ہیں وہ بھی نہیں اٹھا سکتے. تو وہ ان کا جو
ट्वीट है उससे जाहिर है कि जी मैं फिलहाल सियासत नहीं करूंगा। तो सियासत इन लोगों के लिए गोल्फ के कुछ राउंड हैं जो वो खेलेंगे, उसके बाद वो आराम करेंगे, फिर वो हाई टी लेंगे, फिर किसी और मौसम का इंतजार करेंगे। इस वक्त जो बड़ा सवाल है मेरे नज़र में फवाद चौधरी के हवाले से, वो जी जी। ये है कि पाकिस्तान की कौन सी बड़ी सियासी जमात अब उनको लेने के लिए तैयार होगी और वो उनका बोझ उठा सकेगी या नहीं उठा सकेगी। अच्छा, मुझसे सुरंगी साहब, आप सियासी तारीख पे एक गहरी जो है वो नजर रखते हैं। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी पे भी बड़ा मुश्किल वक्त आया, उसके बाद नून लीग पे भी बड़ा मुश्किल वक्त आया। चौधरी निसार के अलावा किसी बड़े नाम ने जो है वो अपनी पार्टी को या अपने लीडर को खैरबाद नहीं कहा। ये तहरीक इंसाफ जनून के गबारे से इतनी जल्दी हवा कैसे निकल गई? देखें, चौधरी निसार साहब के लिए भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी जमात छोड़ी ज़रूर है, लेकिन कोई नई जमात में वो शामिल नहीं हुए और उन्होंने कुछ शिकवे शिकायत ज़रूर की है, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो एहतियात का दामन है वो नहीं छोड़ा। वो गालम गलोच पर नहीं गए, वो बदज़बानी उन्होंने नहीं की, उन्होंने वो इस तरह की ज़बान अख्तियार नहीं की जो पीटीआई में शामिल होने वाले और पीटीआई से निकलने वाले अख्तियार कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये जिस रफ्तार से इस गुब्बारे में हवा भरी गई थी, उसी रफ्तार से इसमें से हवा निकल रही है। तो मुझे तो वो मोहम्मद रफ़ी का गाना याद आता है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस साहब जो थे वो खास तौर पे बड़े पिछले दिनों रिलीफ देते रहे तहरीक इंसाफ को, लेकिन आज की जो हुई है उसकी अदालत की कार्रवाई, उसमें वो हादसे जो है वो थोड़े धीमे लहजे में और उनकी टोन भी थोड़ी चेंज नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वो खुदा के लिए काम करते हैं और उनके हवाले से जो है वो जबान का इस्तेमाल भी जो एहतियात से किया जाए। तो क्या चीफ जस्टिस साहब ने भी हवा का रुख जो है वो चेंज कर लिया है? जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट का रुख जो है वो एक प्रॉपर नजर आ रहा है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। उन्होंने जो आज बातें की हैं उनमें उन्होंने मीडिया से भी शिकायत की है कि जी उनकी जो बात है उसको गलत माने पहनाकर पेश किया जा रहा है। तो मैं तो साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो आला अदलिया के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनका जो ज़ाब्ता अखलाक है, कोड ऑफ कंडक्ट, वो अगर पढ़ लें तो उनके लिए भी अच्छा होगा और कौम के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि जज साहब जो है वो अवामी नुक्ता नज़र और अवामी जो परसेप्शन है और मीडिया है उससे अगर असरअंदाज होंगे तो फिर जो अपना बुनियादी काम है इंसाफ देने का वो नहीं कर सकेंगे। जज साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने मकबूल नहीं होना कि जी वो कितने लोग उनकी बात को सही समझते हैं। उनके जो फैसले हैं वो अवामी राय आमा पे रेफरेंडम कराकर नहीं होते, वो आइन और कानून को देखते हुए किए जाते हैं, चाहे वो मकबूल हों या गैर मकबूल हों। वो एक तरह से तारीख में उनका एक किरदार जरूर होता है, लेकिन जज साहब जो है उनका जो फर्ज है वो आइन और कानून के को देखकर फैसले करना है। बहुत से मुल्कों में जहाँ ज्यूरी सिस्टम है वहां पर जो लोग फैसला करते हैं, जो ज्यूरर्स हैं, उन पर पाबंदी होती है कि जब वो किसी केस की तफ्तीश कर रहे होते हैं और फैसला कर रहे होते हैं तो वो अपने खानदान से मिल नहीं सकते, वो अपने घरों में नहीं जा सकते, वो टीवी नहीं देख सकते, वो अखबार नहीं पढ़ सकते, ताकि बाहर का वो जो इन्फ्लुएंस है वो उन पर ना हो। तो मुझे नहीं पता कि अब हम किस दौर में आ गए हैं कि जज साहबान सोशल मीडिया को देखते हैं कि उन पर कोई उनकी तारीफ हो रही होती है या उन पर तनकीद होती है और उसका जवाब जो है वो कोर्ट रूम में देते हैं। हमने कानून दानों से यही सुना है कि जजेस के फैसले बोलते हैं, उनके रिमार्क्स नहीं बोलते,
उनके ऑफ द कफ कमेंट्स नहीं बोलते। तो मुझे तो जज साहब पे भी अफसोस आया और इस अदालत पे भी अफसोस है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि फैज हमीद साहब के हवाले से कहा जा रहा है, आज फैसल वाडा साहब जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि 190 मिलियन में सबसे ज्यादा जो हाथ है वो फैज हमीद साहब का है, और उन्होंने कुछ सियासी किरदार भी उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि फैज हमीद साहब की का जो ग्रुप है या उनके जो तैनात किए हुए लोग हैं कुछ सेनेट में भी अभी तक मौजूद है, तो वो कौन कौन से लोग हैं? चेयरमैन सेनेट की तरफ क्या इशारा कर रहे हैं या कुछ और लोग भी हैं? मैं ये चाहूंगा कि आप मरहूम हासिल बिजन जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, वोट सारे उनके पास थे, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो वोट उनके खिलाफ निकले। तो उनसे पूछा गया था, जब वो ऐवान की राहदारियों में से जा रहे थे, एक सहाफ़ी ने पूछा कि जी आपकी तो अक्सरियत थी, तो आपके वोट कहाँ गए? तो ये जो संजरानी साहब हैं, उनको किसने मुंतखब किया है? उनके तारीखी अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि ये फैज़ हमीद के लोग हैं। फैज़ हमीद को आप जानते हैं, वो आजकल DGISI होते हैं, ये उनके अल्फाज थे। तो मरहूम तो अपनी कब्र में चले गए, लेकिन उनके अल्फाज अभी भी याद हों, सबको याद है, और वो लोग भी इधर ही हैं। तो उनके अल्फाज की एक अहमियत है। लेकिन फैसल वावडा जो फरमा रहे हैं 190 मिलियन पाउंड के बारे में, तो फैसल वावडा किसी ज़माने में जो इक़्तिदार की जो गुलाम गर्दिशें हैं उनके करीब थे, तो उनको मालूम होगा कि ये किसने किसका क्या रोल था। अभी तक जो फैज़ हमीद साहब का जो साबिक इदारा है, उन्होंने उनके मुलविस होने के बारे में कुछ नहीं कहा, और हमारी जो हुकूमत है उसने भी कुछ नहीं कहा। तो इसलिए फैसल वावडा की अपनी कोई तफ्तीश होगी, तो वो जब हमारे सामने आएगी तो हम उस पर तबसरा कर सकेंगे। हो सकता है उनकी बात दुरुस्त हो सकता है उनकी बात गलत हो। अच्छा मुर्तज़ा सुरंगी साहब, एक आखिरी सवाल, क्या फैसला हो गया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है? आपके पास अंदर की बात क्या है, वो काइंडली जरा बता दें। ये मेरे पास अंदर की बात नहीं है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ज़रूर फरमाया था कि इस पर गौर हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि ये PTI के जो पंछी हैं, जो आजकल नए दरख्तों की तलाश में हैं कि कहाँ पर बैठे, उनके लिए एक एक दबाव, एक सिग्नलिंग है, एक इशारा है कि जी आप इस दरख्त से उड़ जाएं क्योंकि ये दरख्त गिरने वाला है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक तरह के दबाव का हरबा है। जो हाल PTI का होने जा रहा है, वो जो आज मुस्लिम लीग काफ का हाल है, तकरीबन वही हाल होने जा रहा है। किसी ज़माने में मुस्लिम लीग काफ की पूरे मुल्क पर हुकूमत थी, चारों सूबों में भी और वफाक में भी। तो आजकल जो उनका हाल है वो आपको मालूम है। तो मुझे लगता ये है कि PTI जो है वो मुस्तकबिल की काफ लीग होने वाली है, और काफ लीग से किसी को क्या खतरा हो सकता है कि उस पर पाबंदी लगाए। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा सुरंगी साहब। मुर्तज़ा सुरंगी साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल काफ लीग बनने जा रही है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।